Today we will start introductory organic chemistry. We will here discuss some points. Point number 1. The first definition of organic compound was given by Berzelius. Therefore, Berzelius is also called as father of organic chemistry. The term organic, the word organic has been derived from organ. The word organic has been derived from organ. Organ means the part of the body. ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन सबसे पहले बर्जीलियस ने दी थी, इसलिए हम बर्जीलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो लिया गया है आर्गन से। आर्गन के मतलब होते हैं शरीर के भाग, द पार्ट ऑफ द बॉडी। पॉइंट नंबर 2, बर्जीलियस ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं, यानी एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं। लिविंग बीइंग से मिलते हैं, यानी एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं। According to Berzelius, organic compounds were those which were obtained from living being, either from animal or plant. For example, citric acid is an organic compound. Citric acid एक कार्बनिक यौगिक है, because it is obtained from citrus family of plants. सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये प्लांट की साइट्रस फैमिली से मिलता है। इन द सेम वे, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल यूरिन, क्योंकि ये जंतुओं के मूत्र में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, Berzelius gave a theory to explain. This theory is called as vital force theory. Is called as vital force theory. बर्जीलियस ने अपनी बात को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी या जैविक बल सिद्धांत कहते हैं। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में यह कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी पॉइंट नंबर 3, इन वाइटल फोर्स थ्योरी Berzelius said that organic compound could only be obtained from living being. They can neither be obtained from anywhere else. वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने यह कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जैविक पदार्थों से ही मिल सकते हैं और किसी स्थान से नहीं, बिकॉज दे आर synthesized in the body of living being
at a place which is called as cell. At a place which is called as cell. At a place which is called as cell. Under the influence of a mysterious force. Under the influence of a mysterious force which is called as vital force. Which is called as vital force. According to Berzelius, organic compound could only be obtained from living beings and not from anywhere else because they are synthesized in the animal body at a place which is called as cell under the influence of a mysterious force which is called as vital force. Vital force theory में बर्जीलियस ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल जैविक पदार्थों से ही मिल सकते हैं और किसी स्थान से प्राप्त नहीं किए जा सकते क्योंकि ये जंतु के शरीर में ही बनते हैं, एक खास जगह पर बनते हैं जिसको हम कहते हैं सेल या कोशिका, और एक अलौकिक बल की उपस्थिति में ये बनते हैं जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जैविक बल कहते हैं. Berzelius said, since the vital force is only the characteristic of living being, it could not be obtained from anywhere else. Therefore, organic compound could only be obtained from living being and they could not be obtained from anywhere else. Berzelius ने यह कहा क्योंकि वाइटल फोर्स सिर्फ एक जैविक पदार्थ का ही लक्षण है, ये कहीं और नहीं पाया जा सकता, तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं और जगह से पाए भी नहीं जा सकते, सिर्फ लिविंग बीइंग से ही पाए जा सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर दैट अनदर वर्कर फ्रेडरिक वोहलर proved the vital force theory wrong by synthesizing first organic compound urea in laboratory. इसके पश्चात दूसरे वर्कर फ्रेडरिक वोहलर ने इस जैविक बद सिद्धांत को गलत सिद्ध किया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया प्रयोगशाला में बनाकर. He synthesized the urea in the laboratory with the help of following केमिकल रिएक्शंस. उसने यूरिया को प्रयोगशाला में निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाया. He reacted ammonium sulfate with potassium cyanate to give potassium sulfate and ammonium cyanate. See here, these both are electrovalent compound. Both are electrovalent compound. Therefore, they are inorganic compound because you know that the electrovalent compounds are always inorganic compound. In the same way, ammonium cyanate is also an electrovalent compound because ammonium has positive charge, cyanate has negative charge. Therefore, they are bonded with each other by electrovalent linkage. Therefore, ammonium cyanate is electrovalent compound. Since ammonium cyanate is electrovalent compound, therefore it is inorganic compound. उसने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट पर पोटेशियम साइनेट की प्रतिक्रिया करी और पोटेशियम सल्फेट तथा अमोनियम साइनेट बनाया. ये सब के सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं. क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है. जब ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो सब के सब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं. जब उसने व्हेन ही हीटेड अमोनियम, it was converted into urea, which is a covalent compound. This covalent compound is organic compound because we know that the covalent compounds are organic compound or organic compounds are the covalent compound. तो जब उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो हम ये यूरिया में परिवर्तित हो गया जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, अतः ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं. Point number next, that is 5. After that, a number of organic compounds were synthesized in the laboratory, but the notable work was of Kolb. इसके बाद हजारों यौगिक प्रयोगशाला में बनाए गए,
लेकिन जो याद रखने लायक काम था वो कोल्ब था। कोल्ब सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल्ब ने पहला कार्बनिक यौगिक एसिटिक एसिड बनाया उसके अवयव तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अर्थात दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया। He synthesized acetic acid with the help of following reaction. उसने एसिडिक अम्ल को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं से बनाया। 2C plus H2 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिक स्पार्क किया, तो यहां बन गई एसिटिलीन। एसिटिलीन में हाइड्रेशन किया, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ Hg एंड H, तो ये एसिटल्डिहाइड में चेंज हो गया। एसिटल्डिहाइड, अब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में। मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, तो इट वाज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बी आस्क्ड, हु सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी? द आंसर विल बी फ्रेडरिक बोहलर। Who synthesized the first organic compound from its constituent element? The answer will be Kolb. Which was the first organic compound synthesized in the laboratory? The answer will be urea. Which of the following compound was synthesized in laboratory from its constituent element? The answer will be acetic acid. Now next point. Point number 6. Later on, Lavoisier performed the elemental analysis of all the organic compound known to that time. इसके बाद लेवोसियर ने उस समय जितने भी कार्बनिक यौगिक मालूम थे उनका तत्व परीक्षण कर डाला। एंड ही फाउंड दैट द कार्बन वाज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कार्बन वाज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कार्बन वाज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट element of each and every organic compound। और उसने ये पाया कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व जरूर है। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना हो, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तत्व आवश्यक है। लेटर ऑन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज गिवन। Point number 7. The definition of organic compound was given as that organic compound are the compound of carbon with hydrogen. Carbon with hydrogen, that is hydrocarbons and
their derivatives and their derivatives। इसके पश्चात कार्बनिक यौगिक की परिभाषा दी गई और यह कहा गया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ यौगिक हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन है या फिर उनके व्युत्पन्न हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन is an organic compound। For example, methane is an organic compound because it is the compound of carbon with hydrogen, that is hydrocarbon। इसी तरीके से in the same way methyl alcohol, is also an organic compound because it is the derivative of methane। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन है। और मिथाइल अल्कोहल क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये मीथेन का व्युत्पन्न है। इन द सेम वे C6H6 बेंजीन is also an organic compound। बेंजीन भी कार्बनिक यौगिक है because it is the compound of carbon with hydrogen, that is हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यौगिक है अर्थात हाइड्रोकार्बन है। एंड C6H5OH phenol is also an organic compound। Phenol is also an organic compound because it is the derivative of benzene। Definition of organic chemistry। That branch of chemistry where we study in details about these hydrocarbons and their derivative, that is about their preparation, properties, uses, structure, reactivity, nomenclature, is called as organic chemistry। अतः रसायन की वो शाखा जहां पर हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्नों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात बनाने की विधियां, उनके गुण, उनकी क्रियाशीलता, उनकी संरचना और उनका नामांकन पद्धति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो ब्रांच केमिस्ट्री की कार्बनिक रसायन कहलाती है।